नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं आपके साथ जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर है। 6 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी कि कल्लूकारा दिवस, उन शहीदों की याद में हर साल ये बरसी मनाई जाती है। श्री अकाल तख्त साहिब पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, सिख जथेबंदियां वहां पर पहुंचती हैं और इस बरसी को जो है वो वहां पर मनाया जाता है, उन शहीदों को याद किया जाता है। आज इस पूरे मसले पर विशेष चर्चा रहेगी। हमारे साथ में इस चर्चा में विशेष एक पैनल जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हरजाप सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में गुरु प्रताप सिंह टिक्का हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हरजाप सिंह से हमारा पहला सवाल है। हरजाप जी, 6 जून 1984 के वो जख्म आज भी ताजा है और उन शहीदों की याद में हर साल ये बरसी जो है वो कल्लूकारा दिवस के रूप में मनाई जाती है, जहां पर सिख जथेबंदियों के साथ तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं और नम आंखों के साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जी हरजाप जी। जी जजबीर जी, जिस तरह के ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਜੂਨ 1984 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਸੈਕਰੇਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਔਰ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ हमेशा वास्ते हैगियां ने, उन्हां दे नाल ही जाणगियां, इन्हां नूं भुल्लिया नहीं जा सकदा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस जख्म को कभी भुलाया नहीं जा सकता और 39 साल के बाद भी आज ये जख्म जून के महीने जब आता है
तो ये जख्म ताजा हो जाते हैं। लोग नम आंखों के साथ इस दिन को जो है वो नम आंखों के साथ जो है याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। काले दौर के तौर पर इस पूरे महीने को देखा जाता है और अकाल तख्त साहिब पर तमाम जथेबंदियां वहां पर एकत्रित होती हैं। लेकिन अब इस समय पंजाब को जो है हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। पंजाब सरकार को ये आशंका है कि कोई गड़बड़ हो सकती है, जिसको लेकर अब पंजाब में हाई अलर्ट है, जिसके चलते तमाम पंजाब के शहरों में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, वो फ्लैग मार्च का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार क्या खतरा है सरकार को और किस तरह से इस दिन को, क्योंकि 39 साल के बाद भी ये जख्म बिल्कुल अभी भी ताजा है और जून के महीने में इस दिन को जो है वो काले दौर के रूप में मनाया जाता है। जी अध्याप जी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਗਾਤਰੇ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੈਪਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਫਰਕਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ 84 ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 84 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੂੰਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਫਰਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ और आज भी सत्या जा रहा है। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि लोग शांति चाहते हैं और इस तरह से जब ये जून का महीना आता है तो इस दिन को जो है खास तौर पर लोग नम आंखों के साथ मनाते हैं और एक श्रद्धांजलि उन शहीदों को देते हैं जो लोग इस घटनाक्रम में शहीद हुए थे, उनको याद किया जाता है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इंद्रजीत संधू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संधू साहब, जून का महीना और जून के महीने में नम आंखों के साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए थे और ये कल्लूकारा दिवस के रूप में हर साल जो है वो अकाल तख्त साहिब पे मनाई जाती है और तमाम जथेबंदियां इसमें शामिल होती हैं। लेकिन आज पंजाब जो है एक ऐसे दौर पर है, आज पंजाब को हाई अलर्ट पे कर दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई, यहाँ पे पुलिस अधिकारी जो है वो उच्च अधिकारी सड़कों पर उतर के फ्लैग मार्च का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे और पंजाब में आम आदमी पार्टी की यानी कि मान सरकार की जो सरकार है वो सत्ता में है। क्या कहेंगे संधू साहब? देखिए, जगजीत जी, ऐसे है कि सुरक्षा है जो
सुरक्षा बहुत अहम जो विषय है। और ये दिन भी जो है इन दिनों में याद किया जाता है जब पवित्र स्थान जो दरबार साहब है, जो वहाँ जो 6 जून के दिन जो हमला किया गया था। और इसलिए जो सिख समुदाय है उनके लिए ये दिन बहुत अहम है, और उनके बहुत उनका जो हृदय है, उनके भावनाएं हैं, उनकी आहत हुई थी। और इस वजह से हर सिख 1 नवंबर 1984 और 6 जून जो है 6 जून 1984, और ये दोनों जो डेट है 1 नवंबर और 6 जून, ये बहुत हमारे लिए भावुक जो दिन जो होता है। और इसलिए सभी लोग इस दिन को जाते हैं। और लेकिन क्योंकि बहुत सारी जो बाहरी शक्तियां हैं जो पंजाब में अमन शांति नहीं चाहती, जो पंजाब के विरुद्ध काम करना चाहती हैं, आपने पहले भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी कोशिशें जो बाहरी शक्तियों के द्वारा जो हुई, और ऐसा कुछ ना हो तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है कि किसी भी तरह पंजाब में शांति भी बहाल रखना है। किसी भी तरह का कोई ऐसी घटना ना हो कि दोबारा किसी के सेंटीमेंट को ठेस पहुंचे, और ऐसा भी नहीं होने देना कि कोई किसी तरह की कोई घटना को अंजाम दे पाए। इसलिए सरकार का पूरा जो जिम्मेदारी बन जाता है, और वही जिम्मेदारी सरकार जो है वो निभा रही है। एक और इन दिनों में जो और इन दिनों को याद किया जाता है कि इन दिनों में कितना जो सिख समुदाय पर जुल्म किया गया। और दूसरी तरफ जो ध्यान है हमारा वो ये भी है कि किसी तरह कैसे पंजाब के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा जो इशू है, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे सभी को कि शांति बनाए रखें, और सभी इसमें सहयोग करें। ये बहुत दिन जो अहम। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो सिक्योरिटी है वो मुहैया करवानी और आम लोगों की सुरक्षा करना, तो उसी पर सरकार काम कर रही है। ये अच्छी बात है कि लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा रहा है, और इसी के चलते सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और तमाम शहरों में फ्लैग मार्च निकाला है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, 84 का वो दौर आपने भी देखा, 84 के दौर में, और आप ग्राउंड पे भी उतरे, और जिस तरह से आपने देखा कि अभी जो माहौल है उस समय का माहौल भी आपने देखा। और ये जो कल्लू द्वारा दिवस हर साल मनाया जाता है, और अकाल तख्त साहब पे तमाम जथेबंदियां वहां पर एकत्रित होती हैं, वहां पर एक साथ मिलकर बरसी के रूप में इसको मनाया जाता है, और हर साल तैयारियां की जाती है, और जून के महीने में ये तैयारियां होती हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी हालात है, उन हालातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जरे 1983 तो बहुत लंबा समय हमारे यहाँ जे कल्लू करा दिवस इतनी मशक्कत नहीं मना जाता था। इतना बड़ी पदर के मना जाता था। सुबह बस सुबह आते थे, सबको पाके खड़ पड़ कर बात मनबेड़ लेते थे। बाद में जब थोड़ा जो माहौल शांत हुआ थे, अकाली सत्ता में आए थे, फिर इसको बड़ी पदर पे मनाना शुरू किया गया। और मैं ये बता दूं आपको, जो सुरक्षा की बात की है इंद्रजीत सिंह मुराद ने, बिल्कुल ठीक की है। कल को की बात होती है तो फिर सरकार पे गाज गई कि ये सरकार ने प्रबंध नहीं किया। सरकार ने 3600 मुलाजिम 3600 मुलाजिम जहाँ लगाए हुए हैं, 60 नाके लगाए हुए हैं। नाके में रोका किसी को नहीं जाता। हाँ, किसी के छाक के उसको रोकेंगे, पूछेंगे, ठीक है, तो जरूरी है सिक्योरिटी करना सरकार की ड्यूटी है। अंदर भी सिक्योरिटी है, बाहर भी सिक्योरिटी होती है। दूसरी बात, ये कल्लूकरा दिवस जो है, ये तीसरा कल्लूकरा, पहला कल्लूकरा आपको मालूम होगा जो बड़ा कल्लूकरा था 1746 में हुआ था। 30,000 सिख मारे गए थे। दूसरा 1762 में हुआ था।
पहले कल्लूकारा से 238 साल बाद और दूसरे पे 222 साल बीजे कल्लूकारा होता है। ये कल्लूकारा होता क्यों है? कल्लूकारे की तो बुनियाद 10 साल पहले रख दी गई थी कि हमने ये काम करना। जैसे पाजी हरदाब सिंह ने बताया ना, वो चक्राता एरिया था हिमाचल का, जहां बकायदा तौर पे आर्मी की रिहर्सल की गई थी कि वहां रिहर्सल करो, हमने अटैक करना है। मैं आपको बता दूं, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को बोला गया था आप खालिस्तान की डिमांड करो, उन्होंने मना कर दिया था। कहते क्यों? इनका एजेंडा था खालिस्तान के सिखों को बदनाम करने का। इनके ट्रैप में दाल खालसा वाले आगे, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेसों की हम खालिस्तान की मांग करते, और उसके बीच में बकायदा तौर पर उसका बिल भी जैल सिंह दिया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। इसलिए हमारे को इंदिरा गांधी को था 1971 में उसने वार की, बांग्लादेश बनाया थे, मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाई, कोई पूछने वाला नहीं था। 1975 में उसने जो इमरजेंसी लगाई, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी इलेक्शन रद्द कर दी कि आपने गलत तरीके से इलेक्शन जीती है, उस टाइम पे फिर जो जनसंघ वाले से सड़कों पर आ गए थे। उनको रोकने के लिए बेकायदा तौर पे सिखों को कहा गया कि ये निक्करधारी जो है इनको ठीक करने नहीं दो, आप बिल्कुल मोर्चा मत लगाए। सभी मान गए थे। जथेदार गुरचरण सिंह टोड़े को मैसेज लेके आते हैं जथेदार संतोख सिंह दिल्ली कि इंदिरा गांधी का ये मैसेज है, आप कोई मोर्चा नहीं लगाएंगे, आपको जो भी आपकी मांगे मैं ऐलान कर देती हूँ, लिख के दो कौन कौन सी मांगी, मैं ऐलान कर दे देती हूँ आपको, चंडीगढ़ देती हूँ, भागड़ा दे देती हूँ। मैं नहीं बोलता कि उसे माननी, वो दे देती, उससे छलावा भी होता था, कुछ भी हो सकता। लेकिन उस टीम में 8 लीडर बैठे थे। एक लीडर जो प्रभावशाली था सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनने मना कर दिया कि हमारे से छलावा कर रही है, हमारी एक ड्यूटी है गुरु तेग बहादुर साहब जी के संकल्प पे चलते हुए इन लोगों की मदद करनी। जागदत्त शर्मा जो होता था इनके जनसंघ का आगू, क्या करता था, जब संत फतेह सिंह गोहरी पंजाबी सूबे के लिए दरबार से में भूख हड़ताल करते थे, वो मलका के बुत में आके भूख हड़ताल करता था, वहां बैठता पंजाबी सूबा नहीं बन देंगे। इतनी लड़ाई थी। 3 लेटर्स लिखी उसने जेल से, अकालियों को लिखी, एसजीपीसी को लिखी। तीसरी लेटर में ये लिखा भी अभी तो फिर आपके गुरु का संकल्प ना हुआ ना, आप गुरु तेग बहादुर के शिष्य हैं, उसकी बात सुन लो, हमारे को बचाओ। फिर मोर्चा लगा थे, बड़ी गिनती में, हजारों की गिनती में लोग जेल में गए थे। जब कम पड़ने लगे, दमदमी टकसाल के मुखी हमारे थे ज्ञानी करतार सिंह, उनको जाके ना कालियों ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने पंजाब में 37 मार्च निकाले, लोगों को प्रेरित किया, लाखों की गिनती में उस मोर्चे में शामिल होने के लिए। इंदिरा गांधी की बोलती बंद होगी, लेकिन इंदिरा गांधी ये जरूर कहा था, कोई बात नहीं, सम्मान दो, आपको दिखाऊंगी इंदिरा गांधी क्या होती है। इसलिए जो इसकी बुनियाद थी, इस 75 में जब इमरजेंसी थी वहीं रख दी गई थी। और इंदिरा गांधी को पहले बोला गया था कि हम जो हमारी कमांडो है उसमें से जो अकाल तख्त जहां बैठे हुए हैं, इसके बीच में एक मुगोरा करके हम गैस छोड़ देंगे, सब बेहोश होकर पकड़ लेंगे। जनरल वैद्या ने कहा बिल्कुल नहीं, हम अकाल तख्त को तोड़ने के लिए, खुद ने सारा अकाल तख्त तोड़ दिया। ये साजिश थी, कौन सी प्रेसी थी, इसके बिल्कुल आज ऊपर भी वहां पर निशानियां हैं भट्टी साहब, आज भी वहां पर निशानियां हैं, गोलियों के निशान हैं, मार्क किए गए हैं, उनको संभाल के रखा गया है और पूरी कौम को बताया जाता है कि किस तरह से अकाल तख्त साहिब पर हमला किया गया और किन किन इमारतों को नुकसान पहुंचा। तमाम इमारतों को अभी तक जो है वो मार्किंग करके रखा गया जहां जहां गोलियां लगी थी, और तमाम वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के वो पावन स्वरूप जहां पर गोली लगी तो उसको भी संभाल के रखा गया, उस गोली को भी संभाल के रखा गया। तो तमाम जो चीजें थी इनको आज तक जो है संभाल के रखा गया। गुरु साहब के जो पावन स्वरूप थे, जो उन पर जो गोली लगी थी, तो उनको भी संभाला गया इसमें, ताकि कौम को बताया जा सके कि 1984 जून में क्या हुआ था और किस तरह से यहाँ पर हमला किया गया था। देखिए, यहूदियों ऊपर जितने जुल्म हुए, जितनी इमारतें उनकी तबाह की गई हैं, जितना उनका लिटरेचर को नुकसान पहुंचाया गया, उसने आज तक उसको जिंदा रखा।
लेकिन हमारे पास हमारा काल तख्त भी तोड़ दिया, बाद में इमीडिएटली उसको बना भी दिया। हम क्या करते उसके बीच? हमारी लीडरशिप की कमजोरी थी, हमारे लीडर जेल में बैठे थे, पीछे किसने क्या करना था। इसलिए हमारे को जे हमारी जे होते लीडर बाहर होते, कोई मोर्चा लगता थे, हम अकाल तख्त तो उसी स्थिति में रख सकते थे। देखो, लेकिन अकाल तख्त बना दिया गया, 1986 में अकाल तख्त हटा दिया गया। क्यों? कालियों को के द्वारा बनाएगा, लेकिन यहाँ पे सिख कौम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और एसजीपीसी ने उसको तोड़वा के, संगत ने तोड़वा के दोबारा बनाया अपने। सिख कौम की बात नहीं है, अकाली जो लीडर बोलते थे ना, जब बुलडोजर जाएंगे, टैंक जाएंगे, हमारी छाती से ऊपर जाएंगे, वो लीडरों को और रास्ता कोई नहीं था। उनको ये मालूम था हमारी जो लोग उनके किस पासे लगाएंगे तो हम बचेंगे। तो टोड़ा साहब ने वहां से आते ही पहले कह दिया, हमारे को सरकार द्वारा बनाया हुआ काल तख्त परवाह नहीं। जो काल तख्त की पहली इमारत थी वो नहीं है आज, ये मैं बता दूं आपको। काल तख्त बड़ा बनाया गया, उसके मॉडल को चेंज किया गया। वैसे मैं ये बता दूं, गुरु साहब ने काल तख्त नहीं बनाया था, सिर्फ वो एक जड़ी द्वार बनाई थी ना, जो ऊंची बनाई थी, वो बनाई थी। जो ऊंची जगह कैसे बनी? सरोवर की जो कार थी वहां जो फेंकी गई थी, इसके ऊपर से बनाया गया था। गुरु साहब ने सिर्फ भाई गुरदास जी तो बाबा बुड्ढा जी से आते थे बनाई थी, उसको तख्त दर्जा दिया था क्या। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इमारत बनाई, वो गुरुद्वारा बन गया। वैसे हमारा तख्त है, गुरुद्वारा नहीं, अभी गुरुद्वारा बन गया, प्रचलित है, ठीक है, होना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जे मैं बताऊं, सिर्फ हमारी अकाली लीडरों की कमजोरी थी। वो भाजी हरजाब सिंह बड़ी सख्त बोलते होते थे पहले, जब मैंने याद है 1997 में बहुत सख्त बोलते थे। इनको सुन के अकाली भी चुप कर देते हैं, मैं सुनता रहा इनको। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी कमजोरी थी, इनकी कमजोरी की बदौलत ये अटैक हुआ। जे इनकी कमजोरी ना होती शायद अटैक भी ना होता। जी बिल्कुल। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हरजाब जी हमारे साथ है। हरजाब जी, जब ये दिवस मनाया जाता है, कल्लू कारारूप के दिवस में 6 जून को हर साल मनाया जाता है, वहां पर तकरार भी होती है, तलवारें भी निकलती हैं, तो क्या इससे संगत के मन में डर नहीं बैठता? क्योंकि हर साल जब ऐसा होता है, जब टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है वहां पर, तो पूरी लोग वहां पर देखते हैं, तो उनके मनों में, जो खास तौर पर संगत बाहर से आती है, उनके मनों में एक डर बैठ जाता है। तो उस समय आपको नहीं लगता कि इस स्थिति को भी सुधारना चाहिए, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जो संगत आती है यहाँ पर, उसको किसी भी तरह का डर या खौफ ना पैदा हो उसके अंदर? हरजाब जी। जजबीर जी, मैं सब तो पहला तो पट्टी साहब की गल ਨੂੰ थोड़ी जी मैं ठीक करनी चाहांगा। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ बहुत गर्म, हरजाब सिंह जी बहुत गर्म बोलते सी। हरजाब सिंह ਦੀ सोच ਜਿਹੜੀ पट्टी साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि मेरी सोच ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ वो अज भी सही है। हाँ, हो सकता कि समय के नाल मेरी आवाज़ थोड़ी मध्यम हो गई होवे, पर जिहड़ी सोच लैके जिहड़ी जिस परिवार विच असीं होए, ਉਹਦੀ सोच अज दी कोई नवीं नहीं बनी, सदियां तो चली आउंदी रही है। परिवार अंग्रेज़ां नाल भी लड़िया, उन्हां दे खिलाफ भी जेलां कट्टियां, और उस दे बाद जिहड़ा समय आए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਭੁੱਗ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ है, ਇਹਦੀ बैकग्राउंड की है, की कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल एजेंसियों का काम है पूरी सुरक्षा मुहैया कराना, पूरी जानकारी लेना, और एजेंसियां अपना काम करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। एजेंसियां अपना काम करेगी। लेकिन हरजाब जी, यहाँ पे ये जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये लोगों का सवाल है। लोग जानना चाहते हैं, मेरा सवाल ले लीजिए। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कल्लू कारा होता क्या है और किस तरह से ये बरसी मनाई जाती है, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता इस बारे में कि कल्लू कारा क्या होता है, ये बरसी कैसे मनाई जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में लोगों को पता है, लेकिन ये कल्लू कारा कैसे मनाते हैं और उन शहीदों की याद में ये बरसी कैसे मनाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कल्लू कारा मेरे ख्याल है भी बहुत सिख पंथ से ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕਲੂਕਰਾ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1746 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਲੂਕਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1762 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ, ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੂਕਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 36 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ 84 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਠੰਡੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਔਰ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शांति बनानी चाहिए और दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और ये कल्लूकारा दिवस जो उन शहीदों की याद में ये बरसी बनाई जाती है उसको लेकर भी जो है तमाम लोग जो है हर साल इस पर निगाहें रखते हैं और अकाल तख्त साहिब पर ये बरसी हर साल मनाई जाती है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में नरेंद्र जी संधू है हमारे साथ। संधू साहब, आखिरी सवाल है आपके पास मेरा कि जिस तरह से ये दिवस हर साल मनाया जाता है और 6 जून को बड़ी ही श्रद्धा के साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, तो ऐसे में अब जो है सिक्योरिटी के लिहाज से आपकी सरकार ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर शहर में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। कितनी चुनौती समझते हैं क्योंकि इस दिन जो है वो तमाम लोग जो है वो वहां पर एकत्रित होते हैं, वहां पे इकट्ठे एक साथ मिलकर जो है इस बरसी को मनाते हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो ऐसे में किस तरह से अभी कितनी चुनौती समझते हैं क्योंकि ये दिवस और इस तरह से जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी संधू साहब। जाजीवीर जी, बहुत सारी ऐसी ड्यूटी है जो सरकार कर सकती है, एजेंसियां कर सकती हैं, सुरक्षा कर्मी है जो इस सारे काम के लिए, शांति बनाए रखने के लिए लगाए हुए हैं, वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हर बार जैसे कोई नारेबाजी होती है तो सिख वेश में एंटर होके वहां जाकर कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो कर सकते हैं, हर बार करते हैं, हर बार होता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसका प्रभाव लंबे समय तक का जो गलत प्रभाव हो, जिससे ना तो सिखों का नुकसान हो ना पंजाब का नुकसान हो। और क्योंकि जिस घर में शांति होगी वो घर तरक्की करेगा। ये तो छेड़छाड़ हुई है सिखों के साथ, नस्ल खुशी करने की जो कोशिश हुई है, जो 6 जून 84 को भी और 1 नवंबर जो 84 है तब भी जानबूझ के कत्लेआम करने की जो कोशिश जो है, चाहे तब मौके की जो सरकारें थी उन्होंने की है या उनके इशारे पर जो गुंडा अंसर उन्होंने कुछ किया है, जहाँ सरकार ने सीधे तौर पर जो दरबार साहब पर हमला किया वो उसको कह सकते हैं। ये सब कुछ टाला जा सकता था, ऐसे नहीं है कि ये टाला नहीं जा सकता था। अब भी तो हुआ है ना, अमृतपाल वाला केस हुआ था आपके सामने, कैसे बेअदबी को अमृतपाल के केस के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं क्योंकि अमृतपाल का एक अलग केस था और संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले एक अलग दौर था, उस दौर को इसके साथ मिलाया नहीं जा सकता। नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ कैसे नहीं। सरकार जो शांति से किसी काम को हैंडल कर सकती है, ऐसे नहीं है कि जरूरी था कि एक आदमी को पकड़ने के लिए दरबार साहब पर हमला करना कोई जरूरी नहीं था। ये इस पर ये किया जा सकता था, उसका ऑपरेशन का बहुत सारा तरीका हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो अपने अपने तरीके बता देते हैं कि अगर सरकार ने करना है तो इस ढंग से भी किया जा सकता था। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे नहीं है कि आप सभी सिखों को निशाना बना दीजिए और अभी तक वो सारे निशान, अभी तक वो सारी यादें, अभी तक वो जो सिखों के जो भावनाएं हैं आहत हर साल उनको याद करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे कोई इसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने, समय की सरकार ने तब ऐसे किया नहीं। और अब भी हम चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि हर आदमी की भावना होती है और किसी भी तरीके से किसी को भड़काया भी जा सकता है। और वैसे भी बाहरी शक्तियां भी जो इस ढंग से काम करती हैं, टेक्निकल खराबी के कारण आपकी आवाज कम है और जो पंजाब की जो शांति है, कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना हो, समय की कमी है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर तमाम जो है वो यादें ताजा होती हैं जून के महीने में। भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा समय की कमी है, जल्दी में मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत छोटे लफ्जों में कहूंगा
देखिए, सिखों के साथ किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। जे हम कहिए जिन लोगों के एनएसए लगा दी, उनकी एनएसए को लगा दी, उनके पर उसका रिकॉर्ड था कोई क्रिमिनल का भी। दूसरी चीज, जो पाजी की बात की, आप मास्करी की बात की ना, ये वो कल्लू खरा होता है जो निर्दोष लोगों के ऊपर बकायदा तौर पे उनको मारना। 3 जून को हमारे वहां गुरु अर्जन देव पातशाह तक शिदीपुर था, लोग वहां बड़ी कितनी में आए थे, उनके ऊपर उन निर्दोष लोग थे, उसको कल्लू खरा बोलते हैं हम, क्योंकि सन 1747 में 1762 में भी हुआ। तीसरी बात की आपने हथियार की है, हमारी जब मिसलें होती थी ना, मिसलों वाले कभी भी अंदर हथियार लेके नहीं जाते थे। जो अगली 200 हथियार थे हमारे 84 बुंगे थे वहां जो प्रचार के केंद्र थे, वहां रख के फिर जाते थे। लेकिन रवायती हथियार जो थे, कृपान होती जी, बर्छा होता, उनके हाथ में होता था। आज भी यही है, आप दरबार साहब में कोई भी अग्नि दो हथियार लेके नहीं जा सकते, लेकिन रवायती हथियार जाने की इजाजत है। क्यों? एक छोटी सी मैं बात बताऊं, ये 1 सेकंड में। जब अटैक होने लगा तो जेठमल नहीं जाके मिलते हैं संत पिंडरावाले को, 5 सवाल करते हैं। मैं एक सवाल की बात करूंगा, हमारे पास कम है। वो बोलते हैं अभी संत जी आप हथियार रखते हैं? कहते बिल्कुल रखते हैं, हमारे गुरु का हुक्म हथियार रखने का। कहता हथियार तो जंग का प्रतीक होते हैं। कहते जेठमलानी जी आप सोच लो क्या कर रहे हैं। वो कहते मैंने सोच ही लिया ना, फिर सोच लो। कहता ठीक है, आपकी बात मान लेते, जंग का प्रतीक है। आपने बॉर्डर पे इतनी बड़ी आर्मी लगाई है, उनके पास जमीन तो हथियार है, उनको भेज दो बैरकों में, फिर शांति अच्छी तरह हो जाए। हथियार भी शांति का प्रतीक है, इसलिए वहां रखे गए हैं, शांति बनी रहे, कोई दूसरा इसके हमारे पे हमला ना करे। इसलिए जो हमारा इसके साथ एक और सवाल ऐड कर लो, इसके साथ एक और सवाल ऐड कर देता हूं कि इस मसले पर लेकर हर साल जो सियासत भी की जाती है, सियासी रोटियां भी सेकी जाती है, लेकिन आज तक सिखों को जो इंसाफ मांगते आए और उन शहीदों को याद में हर साल कल्लूकारा, जैसे आपने बताया कि क्यों कल्लूकारा कैसे मनाया जाता है और क्या होता है, तो हर साल मनाया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये सियासत यहीं पे, ये सोच को बदलना होगा ताकि लोग जो है वो शांतमयी ढंग के साथ में, और जिस तरह से नस्ल कुशी हम कह सकते हैं, नस्ल कुशी हुई, उसका इंसाफ मांगे। लेकिन इस तक जब अभी तक जो है वो सियासत तो की जाती है लेकिन इंसाफ की बात नहीं की जाती। देखिए, जब भी हमारा होता है रवायती तौर पे एसजीपीसी की तरफ से ओनली जथेदार अकाल तक संदेश पढ़ता और किसी लीडर की स्पीच वहां नहीं होती, और कोई लीडर नहीं बोलता। जथेदार का भाषण यही होता कि जहां हमारे पे अटैक क्यों किया, किसने किया गया, उसका हल कैसे निकलना चाहिए, हमारे को इकट्ठे होना चाहिए। एक ही बात होती है जथेदार की, बाकी दूसरी कुछ होती जी। इसलिए जहां तक सियासी हम फायदा बात करें, जब वहां लीडर बोलते हैं और सियासत की बात करते हैं, सिर्फ जथेदार काल तक धार्मिक अथॉरिटी हमारी वही अपनी स्पीच कर दे, आधा घंटा कर दे, पौना घंटा कर दे, 20 मिनट करते हैं, उनका जो संदेश होता है बाद में लोगों को दिया भी जाता है भी सब जथेदार जी बोला। इसलिए वहां कोई सियासत नहीं होती, सिर्फ जथेदार बोलते हैं जी। बिल्कुल, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।